Hello, welcome again. Today we are going to start second lesson in the history lesson historiography Indian tradition. Okay, this lesson is divided into two parts. That in first part, that is the Indian tradition of Indian historiography, and another part Indian historiography various ideological frameworks. First part, that is the tradition of Indian historiography. The main point means first part section. The main points are which are, look at this, historiography in ancient period, that is information from second written sources, then ancient information from ancient written sources, then uh, Khalana, then medieval Indian historiography, in which Muslim historians, features of a Muslim historiography, then Bakr, and then historiography in the modern period of India. British officers wrote about Indian history. These points included in the first part. Okay, look, I will explain you one by one. That means you can understand very easily. Tradition of Indian historiography. Historiography is an ancient period. Indian historiography, Indian tradition मतलब इतिहास का लेखन और भारतीय परंपरा, ये मतलब इस लेसन का शीर्षक है. फर्स्ट, हिस्टोग्राफी इन एंशियंट पीरियड. इन एंशियंट इंडिया, memories of great deeds and ancestors and mythological lores and memories of social traditions were preserved through the recitation. The art of writing was known to Indians as early the third millennium BCE, but unfortunately no one has yet been able to dispatcher the writing of that period. The earliest known written documents found in India are in form of inscriptions. The first known specimen of a writing was found on the rock. Inscriptions and stone pillars dated on 3rd century before BC. It was inscribed during the rule of Emperor Ashoka. The inscriptions begin to occur on the coins, metal images, sculptures, and copper plates from the 1st century CE. The depicted dates of a kings, dynasties, genealogies, territorial extents, administration of a kingdoms and empires, political events, social organisms, climates, families, etc. Okay. Before clear this means, that means a historiography in ancient period, I told some events and years. That means in 1784 CE, Sir William James founded Asiatic Society in Kolkata. In 1870 CE, 3 volumes of a history of a British India were published. In 1841 CE, History of India was written by Mount Stuart Elphinstone. In 1882 CE, the Tarabai Shinde's book Scriptures Tulna was published. 7th July 1910, the Bharat Itihas Samashodhak Mandal was founded by V.K. Rajwade in Pune. 1922 to 1937 CE, 5 volumes of a Cambridge History of India were published. These are important events in the year. Okay. Now, tradition of ancient period. That means in ancient period, what happens for understanding?
In first lesson we can understand how historiography मतलब इतिहास लेखन के बारे में हमने पहले ही फर्स्ट लेसन में समझ लिया था। आज इस लेसन में, इस लेसन के अंदर में हम इतिहास लेखन और भारतीय परंपरा के बारे में जानेंगे। ओके, प्राचीन भारत के पूर्वज, पराक्रम, दैवता मतलब जो भगवान की परंपरा, सामाजिक बदलाव इत्यादि जो उनकी स्मृतियाँ थी, वो मौखिक परंपरा मतलब जो मुंह से बोलते थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन को, दैट मीन्स मौखिक परंपरा से ये जो हमारी परंपरा थी, पराक्रम थे, सामाजिक जो बदलाव थे, वो मतलब संभाल के रखे जाते थे। मतलब मेरे दादाजी ने मेरे पापा को, मेरे पापा ने मुझे, मैंने मेरे बेटे को, दैट मीन्स विथ मौखिक मुंह से बोलकर ये जो परंपरा थी, हमारे पूर्वजों का, पुरखों का जो पराक्रम था, उनका जो मैथोलॉजिकल देवी देवताओं का परंपरा थी, वो सब हम मुंह से बोलते जाते थे और वो संभाल के रखे थे। हड़प्पा संस्कृति में जो प्राचीन लेख मिले हैं, उसके आधार पर भारत में जो लेखन की कला है, ईस्वी सन के पूर्व 3000 साल पहले और उसके और मतलब उससे भी पहले 3000 साल या उससे भी पहले अस्तित्व में थी लेखन कला, ऐसे दिखते हैं। परंतु हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है, अभी किसी को उसको वाचन करने में या रीड करने में सफलता नहीं मिली। हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि है, वो कोई भी अभी तक पढ़ नहीं सका। ये उनका मतलब हड़प्पा संस्कृति का जो पढ़ना, जो लिपि लिखी गई थी, वो कोई अभी पढ़ नहीं सका। भारत में ऐतिहासिक जो स्वरूप के जो प्राचीन लिखित साहित्य है, वो जो था वो लेख थे, वो मतलब जो पत्थर पे लिखे जाते थे, वो उसकी जो शुरुआत थी मौर्य सम्राट अशोक के काल से ईस्वी सन पूर्व से मतलब ईस्वी सन पूर्व 3रे शतक से सम्राट अशोक के जो लेख है, कोरी मतलब पत्थर पे लिखे गए, वो दगड़ी मतलब पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए हैं। पहली शताब्दी से धातु जो कॉइन थी, नानियाँ, जो मूर्तियाँ, उसके शिल्प, ताम्रपट, इसके ऊपर जो लेख उपलब्ध हुए, इस पे ऊपर से हम ये कह सकते हैं जो ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो सर्व जानकारी जो है वो जो पत्थर पे लिखी गई कोरी लेखों की मतलब लेखों की वजह से उन राजाओं का काल, उन राजाओं की वंशावळ, राज्य का विस्तार, उस समय की शासन व्यवस्था, जो उसके महत्व की इम्पोर्टेंस, जो पॉलिटिकल ये हुई थी राजकीय, उसके बारे में जानकारी, उस समय की सामाजिक रचना, उस समय का हवामान, उस समय की दुष्काल, इसके बारे में पूरी जानकारी वो लेखन जो पत्थर पे लिखे गए, जो ताम्रपट पे लिखे गए हैं, जो नानियाँ लिखी है, कुछ शिल्प लिखे गए, शिल्प बनाए, उसके नीचे लिखी गई, उसकी जानकारी के मतलब उसके देख के हम एक ये कर सकते हैं कि ऐतिहासिक जानकारी जो हमें मिली, इसके ज़रिए हम इन सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। प्राचीन भारत के साहित्य में रामायण, महाभारत, ये बड़े बड़े काव्यों में, महाकाव्य जैसे पुराण, जैन, बौद्ध ग्रंथ, धर्मों के जो ग्रंथकार जो थे, उन्होंने ऐतिहासिक साहित्य और जो परकीय लोग थे, उनके प्रवासी, उनके बारे में उनका प्रवास का वर्णन, जो इतिहास का महत्व का साधन माना जाता है। प्राचीन काल में राजाओं का चरित्र, राजघरानों का इतिहास, भारतीय इतिहास काल का महत्व का मतलब एक इम्पोर्टेंट स्टेप है।
ईस्वी सन में मतलब 7वें शतक में बाणभट्ट उन्होंने एक कविता, वो जो कवि थे बाणभट्ट कवि थे, हर्षचरित एक संस्कृत काव्य ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ के स्वरूप में लिखा है। उसमें तात्कालिक उस समय की तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का वास्तववादी चित्रण किया गया है। किसमें? बाणभट्ट ने लिखी हुई कविता में। हर्षचरित उसका नाम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न सोर्सेस। अभी हमने पढ़ा epics like Ramayana and Mahabharata, Buddhist, Jain's religion texts, written sources of ancient Indian literature, historical accounts by Indian authors, travelage by foreign travelers। अभी मैंने बताया कि जो हमारे पुरखों ने जो विदेश से जो लोग आए थे उनके प्रवास का वर्णन लिख के रखा है। Information from ancient Indian sources, dynasties that ruled in a particular period, developments and administration, prevalent social structure, climate, natural calamities. Harshacharit, written by in the biography of Indian king Harsha, written by Banabhatta. Harshacharit was composed in the 7th century. अभी मैंने बता दिया। It gives realistic views of a social, economic, political, religious and cultural life during the king's time. खलाना, that means उसके बारे में उन्होंने लिखा है खलाना। He wrote in 12th century, CE, book Rajatarangini on the history of Kashmir. His style of writing resembles the concept of a modern historiography. The book was written after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions. मध्ययुगीन इतिहास के जो लोग थे, मतलब हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंशिएंट रिटर्न सोर्सेस, जो इंफॉर्मेशन है एंशिएंट, जो प्राचीन जो लिखी गई सोर्सेस हमको मिली है उसके जरिए में ईस्वी सन पूर्व 12वीं शती में कल्लण यानी मतलब उसने एक रजतरंगिणी नाम का काश्मीर पर इतिहास का ग्रंथ लिखा है। इतिहास लेखन शास्त्र शुद्ध कैसा होना चाहिए उसका आधुनिक संकल्प जो है उसके साथ क्या रिलेशन बताता है। उसमें कोई लेख जो कॉइन्स है, जो प्राचीन चीजें अवशेष है, राजकुल की जो नोंद है, आधुनिक अधिकृत नोंदी मतलब राजघरानों का, उनकी परंपराएं, ऐसे अनेक साधनों का चिकित्सक पूर्वक पढ़ाई करके वो ग्रंथ लिखा है। कौन सा? रजतरंगिणी। Who written Kalhan in which year? In 12 ईस्वी सन 12वीं शती में। मध्ययुगीन भारत में मतलब मुस्लिम दरबार। अभी उसका जो आगे का पॉइंट्स है, medieval Indian history of Muslim historians, that means historian Zainuddin Barani, बाबर अब्दुल फजल। ज़ैनुद्दीन बारानी ने तारीख ई फिरोज शाही वो लिखा है। बाबर ने तुज़क ई बाबरी, बाबर ने लिखा था। जियाउद्दीन बरनी तारीख ई फिरोज शाही ये लिखा था। उसके बाद में बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तुजुक ई बाबरी ये लिखा। और तीसरा था अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था। अब पहला जो है ज़ैनुद्दीन बियानी ने तहरीक ई फिरोज शाही, he started a proper historiography. In his opinion, it is not enough to record rulers' valor and welfare policies. He should also write about rulers' drawbacks and wrong policies which resulted in failure. He should write about impact of teaching of wise word and sayings in a cultural life of the people. Babar
बाबर ने जो बुक लिखी थी तुज़क-ई-बाबरी, उसकी जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, he described the battles fought by him. He recorded minute observation about various regions and cities he visited. He also gave information about the local economy, customs and flora. और जो तीसरा है अबुल फजल अकबर नामा उसने लिखा था, that is the characteristics of a historiography, analysis of a historical information based on authentic documents, to scrutinize the information, the method he devoted for prejudice and hence realistics. Features of a Muslim historiography. The Muslim historian in medieval India were influenced by Arabic and Persian historiography. The loyalty and eloquence in praising the imperial reflected in historiography. The practice of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was introduced. Then the next point related with this, that is a Bakar. Bakar, it contains eulogies of heroes and stories of historic events, battles and lives in a great man. Okay, that means types of Bakar: state of administration by king, biographies of king, destinies history, regarding diviners, based on mythology, description of events, history of sites. Okay, also information chronologized by Bakar. Information about rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj, describes battle in Panipat, Bhausahebanchi Bakar, Sabasat Bakar, written by Krishnaji Anant Sabasat. Also, Holkaranchi Kaifiyat, Panipachi Bakar, information about Holkar and their contribution to Maratha rule, description of a battle of Panipat. Okay, and then historiography in modern period in India. That means archaeological excavations started in 20th century under the British rule. Many of the British officers wrote about Indian history. Their writings show a great influence of the political policies of the British. The writings display an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of Indian culture. Okay, then last point after clearation this. Okay, जो 12वीं सदी में हमने बताया पहले शुरुआत में, 12वीं सदी में कल्लन नाम का जो इंसान था, उसने रजत रंगिणी नाम का कश्मीर के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है। इतिहास का लेखन शास्त्र शुद्ध कैसे होना चाहिए, इसका संबंध एक ग्रंथ बताता है, नजदीकी संबंध। उसमें जो लेख है, जो नानियां मतलब जो कॉइन्स है, प्राचीन जो वास्तु है उनका अवशेष, राजघरानों की अधिकृत जो जानकारी, उनकी स्थानिक परंपरा, ऐसे बहुत सी चीजों की चिकित्सा पूर्व पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। ऐसा कल्याण ने लिखा है, कल्याण ने उल्लेख किया। उसके बाद में मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम जो राज्यकर्ता थे, उनके दरबार में इतिहास लेखन का अरबी और फारसी इतिहास की परंपरा का प्रभाव उन पे था। मध्ययुगीन इतिहासकारों में, मुस्लिम इतिहासकारों में जियानुद्दीन बर्नी एक महत्व का इतिहासकार था। उसने तारीख-ई-फिरूज़शाही ये उसका ग्रंथ लिखा। उसमें इतिहास लेखन का हेतु उसने स्पष्ट किया। उसकी जानकारी, उसके हिसाब से इतिहासकार का कर्तव्य खाली राज्यकर्ताओं का पराक्रम और उनका कल्याणकार जो उनका जो धोरण था, उनका जो विजन था, इसका इंफॉर्मेशन करके खत्म नहीं होता। उनके दोष, उनकी गलतियां, उसका भी चिकित्सक पूर्वक विवेचन होना चाहिए, ऐसा उसका कहना था। इतना ही नहीं, उस संबंध के काल में जो विद्वान व्यक्ति, जो अभ्यासक थे, साहित्यिक थे और संत थे, उनका सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव भी ध्यान में रखना चाहिए था। बर्नी के इस विचार से इतिहास लेखन की व्याप्ति जो थी अधिक बढ़ गई।
मुगल बादशाह के दरबार में इतिहासकार के लेखन में राज्यकर्ताओं की स्तुति, उनकी बारे में जो निष्ठा थी, उन पहलुओं को विशेष महत्व था। उसके साथ ही उस वर्णन में जो पद्य था, सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की जो पद्धति वो भी शुरू हुई। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, उसका आत्मचरित्र तुजुक-ई-बाबरी, इसमें बाबर ने जो युद्ध किए हैं उनका वर्णन है। उसके साथ साथ में उसने जहाँ जहाँ पर प्रवास किया, मतलब घूमा, उस प्रदेशों की, उन शहरों का वर्णन, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, वहाँ के रीति रिवाज, वनस्पति सृष्टि, इनका उसने बाकायदे से निरीक्षण किया। उसका भी लेखन बाबर ने लिखा है, जिसमें तुजुक-ई-बाबरी। इतिहास लेखन, चिकित्सक पद्धति, अबुल फजल, उसने अकबरनामा ग्रंथ में विशेष महत्व है। जो अधिकृत नोंद के आधार पर जो कागज के दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज जो उन्होंने संकलन किया है, उसकी जो जानकारी है वो विश्वासार्हता उसके ऊपर है। उसकी छाननी अबुल फजल ने, जो संशोधन पद्धति वास्तववादी होती है, उसकी संशोधन पद्धति ग्रह विरहित और वास्तववादी थी, ऐसा माना जाता है। बखर वो ऐतिहासिक साहित्य का एक इम्पोर्टेंट प्रकार है, मतलब उसमें जो शूरवीर थे उनका ऐतिहासिक जो इवेंट्स थे उसके बारे में, जो लड़ाई लड़ी गई थी, बड़े थोर जो पुरुष थे उनका चरित्र, इनके बारे में जानकारी इस बखर में पढ़ने को मिलती है। मराठी भाषा में, मतलब हम ऐसे बखर का उल्लेख जो करते हैं, उसमें एक महत्व की जो बखर है, मतलब सभासद बखर, छत्रपति राजाराम महाराज की कारकिर्द में कृष्णाजी अनंत सभासद नाम के आदमी ने वो बखर लिखी थी, इसके लिए उसको सभासद बखर बोलते हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनकी जो कारकिर्द थी उसके बारे की जानकारी उसमें लिखी है। उसके बाद में बाहू साहेबांची बखर, इस बखर में पानीपत की लड़ाई का वर्णन किया गया है। इस विषय पर आधारित पानीपत की बखर ऐसे अलग ही स्वतंत्र बखर लिखी है। उसके साथ होळकरांची कैफियत, इस बखर के अंदर में होळकर घराना, उनका योगदान हमको समझ में आता है। बखर में चरित्रात्मक, वंशानुचरित्रात्मक, प्रसंग वर्णनात्मक, पंथीय, आत्मचरित्र पर कैफियत, पौराणिक और राजनीति पर, इस तरह के प्रकार बखर के हैं। अभी उसके बाद में जो इसका जो पॉइंट्स है, हिस्टोग्राफी, ब्रिटिश ऑफिसर्स who wrote about Indian history, okay, Sir Alexander Cunningham, Sir John Marshall, James Mill, Monstret, Elphinstone, Grant Duff, Connor Todd, William Wilson Hunter, ये जो 5-7 ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने लिखा है। मतलब सर अलेक्जेंडर ने लिखा है, the first director general of the Archaeological Survey of India. A number of ancient sites were excavated. The sites mentioned in Buddhist texts were selected for excavation and research. Sir John Marshall, Harappan civilization was discovered. It proved that Indian civilization dated back to 3rd million BCE. James Mills, The History of British India, the first book written on Indian history by British historian, in 3 volumes published in 1870. It lacked objectivity. Then Mount Elphinstone, Governor of Bombay, now Mumbai, published in 1841. Grant Duff, published in 3 volumes. It shows inclination towards the condemning Indian culture and history.
Onalto, he wrote the history of Rajasthan. He had attitude towards the Indian, condemning attitude towards the Indian. And Williams Hunter, he wrote 2 volumes of Indian history. It shows somewhat impartial treatment of the history. जो इतिहास आधुनिक काल में इतिहास लेखन और ब्रिटिश काल जो था 20वीं सदी में ब्रिटिश राजवट के अंदर में भारत का पुरातत्व खाता का जो पढ़ाई थी अभ्यास था वो शुरुआत हो गई। भारतीय पुरातत्व खाते का पहला जो संचालक था अलेक्जेंडर कैनिंघम, उनके अंडर में प्राचीन जो जगह थी उसका उत्खनन किया गया। उसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में जो उल्लेख था उनके उनकी वो पॉइंट इस तरह थे उसके ऊपर केंद्रित था। उसके बाद आगे जॉन मार्शल हड़प्पा संस्कृति का खोज निकाला। हड़प्पा संस्कृति का मतलब उन्होंने उनकी कारकिर्द में उनके टाइम पीरियड में वो खोजा। और भारतीय संस्कृति का इतिहास जो था 3000 साल पहले या उससे भी कई पहला जो जा सकता है। भारत में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आए उन्होंने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया है। उन्होंने जो लेखन किया है वो वसाहतवाद, उनका जो लेखन है ब्रिटिश लोगों पर वसाहतवाद मतलब उन्होंने जो कॉलोनीज बनाई थी उसका जो प्रभाव था उनके लेखन पर दिखाई देता है। जेम्स मिल, उसने लिखा था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके 3 खंड है 1817 साल में उसने लिखे। ब्रिटिश इतिहासकार ने भारतीय इतिहास पर लिखा हुआ ये पहला ग्रंथ है। उसके लेखन में वस्तुनिष्ठ जो दृष्टिकोण का था उसका अभाव और भारतीय संस्कृति का पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण स्पष्ट से दिखाई देता है। 1841 में माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टीन इसने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम का ग्रंथ लिखा। माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टीन ये बम्बई का गवर्नर था, मतलब मुंबई, आज का मुंबई, 1819 से 1827 तक। भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य का कालखंड का स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठी साम्राज्य का इतिहास ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ग्रैंड डफ इसने लिखा था। उसने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ मराठास, ये ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के 3 खंड है। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, इनको कम लेख उनके मतलब जो भारतीय इतिहास है उनको कम लिखना था, उनको कम वैल्यू देना था ब्रिटिश अधिकारियों ने। ब्रिटिश अधिकारियों की जो प्रवृत्ति थी ग्रैंड डफ वो उनके लेखन में दिखाई देती है। ऐसी प्रवृत्ति राजस्थान का जो इतिहास लिखा था कर्नल टॉड, उसने लिखा था। विलियम विल्सन हंटर, इसने भी हिंदुस्तान का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा था। उसकी लिखावट उसमें निपक्षपाती वृत्ति दिखाई देती है। मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका प्रभाव, भारत को देखने का दृष्टिकोण, उनका नजरिया, एक तो भारत को कम देखने का नजरिया उनकी लिखावट में या लेखन में दिखाई देता है। डफ यानी इतिहास लेखन के मर्यादा नीलकंठ जनार्दन कीर्तनी और बी.का. राजवाड़े यानी 19वीं शती में दिखाई देगी। ओके, वी आर गोइंग कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।